सीए विचार मंच के बिहाफ पे मैं मनमोहन खेमका सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों और बहनों का सीए विचार मंच के इस सेकंड सेमिनार में स्वागत करता हूं। इस सेमिनार में आज हम सबके साथ में है माननीय श्री गिरीश आहूजा जी, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, द समुद्र ऑफ नॉलेज and tax expert, renowned and loved by everyone, Shri Girish Ahuja ji with us. We are also having with us today Shri Yatindra Khemka ji, our advisor, CA Vichar Manch Advisory Committee, Shri Akash Jain ji, convener, Daryaganj CPE Study Circle, Shri Subhash Kamboj ji, General Secretary, CA Vichar Manch, Shri Manpreet Singh Kapoor ji, convener, Webinar Committee, CAVM, Shri Saurabh Srivastava ji, CFO from Bangalore. I welcome, and all the audience, I welcome you all in this second seminar of CA Vichar Manch. I am really very delighted to have all of you with us on this second seminar of CA Vichar Manch. CA Vichar Manch is a organization of tax and finance professional, and we are in our continuous efforts to impart knowledge and sharing knowledge is organizing this webinar series. Today we have Girish Ahuja ji with us on recent amendments in income tax through Finance Act and the ordinance. I will not take much of the time and request Shri Girish Ahuja ji to please enlighten us with his deliberations. And later on the part, later on we will ask questions, and you are requested to put your questions on the chat box or question and answer box. Shri Girish Ahuja ji, please. Thank you very much. The office bearer of the CA Manch, of course, and Manmohan Khemka ji, ladies and gentlemen. Well, friends, I have divided the discussion into two parts. One is the government amendment in the finance bill. Another is the relaxation ordinance. Let me tell you about government amendment. What are government amendment? You know, bill is presented, and normally this time also it was presented on 1st of February 2020. Now, after the bill is presented, it is put in public domain, everybody knows. Then they invite suggestions also. And at the time of passing the bill, the finance minister moves certain amendment in the finance bill which is already introduced. The MP sitting there can also move amendment. Now those are put to vote. And once those are passed, those amendments are incorporated in the finance bill, and that is passed in the Lok Sabha. Then it goes to Rajya Sabha, and ultimately President gives the consent. So point is, at the time of passing of the bill, certain amendments are moved, which are called government amendment. That's all. That is the difference. This time also the amendment was moved on 23rd March, and of course the bill was also passed on 23rd March by Lok Sabha. There were 40 amendments in all, but they are not 40. There are only 18 amendments covering 18 sections, but each clause, 3 clauses may be for one section. That's why only 18 amendments. The first amendment was very simple. I need not mention, but still I'm passing it, I can mention that section 2 clause 15A at one time is giving a definition of Chief Commissioner of Income Tax. And it says Chief Commissioner of Income Tax means the Chief Commissioner of Income Tax appointed or the Principal Chief Commissioner of Income Tax appointed by the government. But they had the definition did not include Director General of Income Tax or Principal Director General of Income Tax in the definition of Chief Commissioner of Income Tax. They have included. That's all. Nothing much. But since it was an amendment came, I told you. Next change is a very difficult one. Sara, section 6.6 could please try to understand. Please try to understand. You will have to tell me one thing if you have somebody. If there are people from South, then I will keep the entire discussion in English. But if there are not people from South, I can make it little bit in Hindi also. You have to let me know, because I have to be very careful. There's some people from South may not be able to understand Hindi. Then they always comment, please be in English. So tell me if it is anybody, any idea, no idea, I will speak in English. Okay, forget.
I'll speak in English only. Girish ji, most of the participants are on from northern and central part of India. So we will take a आपने request की है, we will take a poll. अगर कोई south से होंगे तो we will intimate and then accordingly we will go. Okay, okay. Then not try to understand. In the English. There is amendment in section 6 relating to residential status. Section 6(1), existing section says an individual is said to be a resident in India if he has been in India for a period or period amounting to all 182 days or more in the previous year. So if in the previous year you are here for 182 days, you are resident in India. This is already there. Or if you don't satisfy the first condition, in the 4 preceding previous year, you had been in India for 365 days or more, and in the relevant previous year, 60 days or more. Only 60 days or more. But you know that there is an explanation 1. Clause B I'm talking about, I'm not taking clause A. Clause B, which says, which is already there, in case of a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India, comes to India for a visit, the period of 60 days in condition number 2 shall be substituted by 182 days. What does it say? कि देखिए, अगर if you are citizen of India or a person of Indian origin, you are outside India. You come for a visit to India. That 60 days will be substituted by 182 days. Meaning thereby, what is the need of second condition? Because if you are here for 182 days, you are otherwise resident. So this concession was given to citizen of India or a person of Indian origin. Now, what is the change in this explanation B? ये रखा है, but this has been extended also. अब मैं बोलता हूँ, clause B, new amended clause B क्या कहती है? पहली वही है, in case of a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India, comes to India for a visit, the period of 60 days mentioned in clause 2B shall be substituted by 182 days. यहाँ तक change नहीं किया, अब change किया. And in case of a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India, having total income other than income from foreign source exceeding 15 lakh. Exceeding 15 lakh. Foreign having total income other than income from foreign source exceeding 15 lakh, then that 60 days period shall be substituted by 120 days. जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना. अगर आपकी 15 लाख इनकम टोटल इनकम, पहले सुनिए टोटल इनकम का क्या मतलब है. टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स. सुन लीजिए, टोटल इनकम में इंडियन इनकम तो लेनी है. Income received in India, deemed to be received in India, income accrue or rise in India, deemed to accrue. वो तो लेना ही लेना है. एक और लेना है, और वो है income of a business outside India but controlled from India. Income from a profession outside India but set up in India. बाकी कोई फॉरेन इनकम नहीं लेनी. आपको कोई फॉरेन इनकम नहीं लेनी, वो वाली सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, इवन फॉरेन बिजनेस भी नहीं लेना अगर वो इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा. फॉरेन प्रोफेशन भी नहीं लेना अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा. अगर हो रहा है तो इंडियन इनकम प्लस 2 more income, that is income of a business which is outside India but controlled from India, or income of a profession which is outside India set up in India. ये मिलाकर, if it is not more than 15 lakh, you can come to India for 181 days without being called resident. अगर 182 days हुए तो resident है. अब दूसरा क्या कर रहा है? If your total income including these two income exceeds 15 lakh and you come to visit in India, तो 119 days रहेंगे तो non-resident होंगे. The moment you are here for 120 days, ये resident हो जाए. देखिए वो क्लॉज बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. If your total income including income those 2 sources does not exceed 50, you come to India for 181 days, non-resident. You come to India for 182 days, resident. But if your total income including वो 2 source की income जो मैंने बोला, income from a business outside India, controlled from India, or income from profession outside India, set up in India, वो मिलाकर if it exceeds 15 lakh, then please
You can stay in India for 119 days. 119 दिन रह सकते हैं. The moment you are there for 120 days, आप resident मान लिए जाएंगे. So अब 182 days वाला भी है, 120 days वाला भी है. 182 days 15 से ज्यादा नहीं है. 120 days 15 से ज्यादा है. 181 दिन नॉन रेजिडेंट, 119 दिन नॉन रेजिडेंट. अब आगे बढ़ते हैं. ये दोबारा आऊंगा इसके ऊपर में. अब आगे बढ़ते हैं. अगर बिल जब आया था तो मेरे को याद है, आई वॉज गिविंग ए वेबिनार फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बिल्डिंग प्रेमाइसेस इन द इवनिंग ऑन 1st of February itself. When you are giving a webinar on this non-resident world case, बहुत टेलीफोन आया. About 300 queries came from there, particularly from Dubai, Kuwait और other places. कि सर ये क्या करवा दिया, ये डीम्ड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट क्या करा दिया आपने, तो हमें बर्बाद दिया. I told them nothing to worry. Let me explain to you. I was supposed to go to that country. I went to Dubai, I went to Kuwait, I went to Muscat also, went to Qatar also. I told them when I come to you, I'll explain to you. मैंने उनको बताया आप घबरा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके पास डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, आपको टैक्स रेजिडेंसी. वो कहता जी ये नहीं चले. After discussing with everything, I came back and discussed with the department. I said, sir, this is hardship to them, those who are working outside country, those who are working in Gulf. There is no tax payable in that country. They will be put into lot of difficulty. वो मेरी बात मान गए. अब मैं आपको बता रहा हूँ what was old section 61A which was inserted in the bill and what is the new section which is inserted in the bill. पहले 61A डाला था, पुराना सुनिए क्या डाला था. Notwithstanding anything contained under 61. कहता 61 में कुछ भी लिखा हो, वो छोड़ दो 182 days, 60 days वगैरह, एक्सप्लेनेशन भी छोड़ दो. Notwithstanding, an individual who is a citizen of India shall be deemed to be a resident in India if he is not liable to pay tax in the foreign country or foreign territory by reason of his residence, domicile or criteria of similar nature. क्या बोला गया कि अगर आप बाहर रहते हैं और बाहर कंट्री में टैक्स नहीं है, जैसे आप केमन आइलैंड में रहते हैं, बरमूडा में रहते हैं, बहामा में रहते हैं, और लकीली जो भी कहो गल्फ में भी टैक्स नहीं है, यूएई में टैक्स नहीं है, कुवैत में नहीं है, बहरीन में नहीं है, दोहा में नहीं है, इवन आपका ओमान में भी नहीं. तो अगर वो क्या हुआ, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा. ये उन्होंने कह दिया था, बिकॉज यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन द फॉरेन कंट्री. वो कह रहे हम तो मर जाएंगे, डीम्ड रेजिडेंट होगा तो फिर हमें तो दिक्कत आएगी. हालांकि उनको मैंने बताया था 2 कंट्री का रेजिडेंट हो तो आपको टाई ब्रेक का रूल लगता है, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था. लीजिए, चेंज कर दिया गया, बहुत एडवांटेज दे दिया गया. अब नया, भूल जाइए पुराना क्या था, अब नया क्या है, सुनते रहिए. Notwithstanding anything contained under 6(1), an individual whose total income other than total income from foreign source, exceeds 15 lakh, यहां भी 15 लाख लिखा है, shall be deemed to be a resident in India if is not liable to pay tax in the foreign country or foreign territory due to his domicile, residence or criteria of similar nature. अब क्या कह दिया, अगर आप फॉरेन में रहते हैं वहां पर टैक्स नहीं लगता. तो सुनिए, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब टोटल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वही इंडियन इनकम received in India, deemed to be received in India, accrue or rise in India, or deemed to accrue in, plus 2 foreign source income from a business outside India but controlled from India, or income from a profession outside India but it is set up in India profession. वो दोनों मिलाकर 15 लाख से कम है तो डीम्ड रेजिडेंट नहीं होंगे. फिर तो आप 181 डेज आ ही सकते हैं. अगर 15 से ज्यादा हैं तो उस केस में आप इवन इफ इंडिया में 1 दिन भी ना हो, आप तो डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाओ.
सुनिए मैंने क्या कहा, आपकी इंडियन इनकम प्लस 2 फॉरेन सोर्स इनकम जो मैंने बताई एक्सीड्स 15 लाख और आप बाहर टैक्स नहीं दे रहे, तो उस केस में आप डीम्ड रेजिडेंट इंडिया के माने जाओ। घबराइए नहीं, मैं बताऊंगा वो डीम्ड रेजिडेंट। अगर 15 से कम है तो फिर तो आप 181 डेज भी आए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 15 से ज्यादा है, इवन एक दिन भी इंडिया ना हो तो भी आप रेजिडेंट मान जाएंगे, डीम्ड रेजिडेंट। लेकिन डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है थोड़ी देर में बताते हैं, घबराइए नहीं, वो डीम्ड रेजिडेंट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ एक केस है कि रेजिडेंट कैन आइदर बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा केस आपको पता ही है नॉन रेजिडेंट। पहले ये बता दूं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को किस चीज पे टैक्स देना पड़ता है, नॉट ऑर्डिनरी को किस पे देना पड़ता है, और नॉन रेजिडेंट को किस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। सुन लीजिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैज टू पे टैक्स ऑन द ग्लोबल इनकम, ऑन द ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम इज द वर्ल्ड इनकम। हाँ, वो अलग बात है, अगर फॉरेन कंट्री में कोई टैक्स दे के आता है तो उसका हम उसको क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन टैक्स तो उसको पूरी फॉरेन इनकम पे भी लगता है। इनकम विच अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, उस पे भी टैक्स उसको यहां देना पड़ता है। ये पहला है रेजिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी के लिए। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन इनकम पे तो देता ही देता है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और राइज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, लेकिन 2 और इनकम पे भी टैक्स देता है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया but controlled from India, or income of a profession outside India which is set up in India. अगर ये पे देता है नॉट, बाकी फॉरेन इनकम पे नॉट ऑर्डिनरी नहीं देता, बाकी नहीं देता। बाकी कौन सी, सैलरी इनकम बाहर है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बाहर है, कैपिटल गेन बाहर है, इवन बिजनेस बाहर है जो कंट्रोल नहीं हो रहा इंडिया से, वो टैक्स नहीं देता। और नॉन रेजिडेंट तो 2 इनकम पे टैक्स तो वो भी देता है, इंडियन इनकम, incomes received in India or deemed to be received in India, income accrue or rise in India, deemed to accrue देता है, वो तो देता ही देता है, तो सबको देना है। जो 2 इनकम है वो सबको देना है, चाहे रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो। लेकिन फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देता है नॉन रेजिडेंट हो। अगर नॉट ऑर्डिनरी हो तो फॉरेन इनकम पे सिर्फ 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है, और रेजिडेंट हो तो सारी फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है। ये ध्यान रखना। अब क्या किया है, हमारे यहां सेक्शन 66 है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है। याद है, अगर आप रेजिडेंट हैं तो पहला लॉ क्या लिखा हुआ था, अगर आप रेजिडेंट करंट ईयर में हैं तो अगर पिछले 9 साल आउट ऑफ द 10 years प्रीसीडिंग, इफ यू आर नॉन रेजिडेंट तो आप नॉट ऑर्डिनरी माने जाएंगे। करंट ईयर में रेजिडेंट है, बट फॉर द पास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, if you are non-resident in 9 out of 10, हम आपको क्या मान लेंगे, नॉट ऑर्डिनरी। या और उसमें लिखा था in the past 7 years immediately preceding the relevant previous year, you are in India for 729 days or less, not more than 729 days। 730 होते ही रहे, 729 से ज्यादा नहीं है तो भी अब नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा। ये तो पहले से था, इसको चेंज नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए क्या किया है। जो मैंने बताया था डीम्ड रेजिडेंट, कौन सा डीम्ड रेजिडेंट, जिस बाहर कंट्री में टैक्स नहीं देता और टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। 2 कंडीशन है डीम्ड रेजिडेंट की, नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया है, बाहर रहता है, लेकिन टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम 2 सोर्स एक्सीड्स 15 लाख, तो हमने उसको डीम्ड रेजिडेंट कहा था। इन्होंने कह दिया वो डीम्ड रेजिडेंट हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, he will always be not ordinary resident। वो रेजिडेंट होगा ही नहीं, नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो नॉट ऑर्डिनरी है तो क्या करना है, घबराया क्यों, उसको फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम पे तो पहले भी टैक्स देना था, सिर्फ 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है, अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और ए प्रोफेशन विच इज आउटसाइड इंडिया सेटअप इन इंडिया, बाकी पे नहीं देना। अब तीसरा केस आपको मैंने बताया था कंडीशन बी में, अगर आपका बाहर टैक्स दे रहे हैं और आपकी इंडियन इनकम प्लस 2 फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो मैंने बोला था 119 दिन आ सकते हैं, 120 दिन आएंगे तो रेजिडेंट हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, अगर आपकी 15 से ज्यादा है, अब आप 120 से 181 डेज आ जाएंगे
तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरी मान लेंगे। अरे 182 डेज आएंगे तो रेजिडेंट हो ही गए, अगर 181 डेज भी आ जाएंगे तो नॉट ऑर्डिनरी मान लेंगे। सुनिए सुनिए, मैं इसको समझाता हूं। अगर तो आप डीम्ड रेजिडेंट है, डीम्ड रेजिडेंट तब होता है जब फॉरेन में टैक्स नहीं लगता और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो सिटीजन है, वो तो है ही नॉट ऑर्डिनरी। अब दूसरा केस, आप बाहर टैक्स दे रहे हैं, आप सिंगापुर में हैं, वहां टैक्स लगता है, वहां टैक्स लगता है। आप इंडिया आना चाहते हैं, हमने आपको बोल दिया अगर आपकी टोटल इनकम 15 से ज्यादा नहीं है तो 181 डेज आ सकते हैं, और आपकी इनकम 15 से ज्यादा है तो 119 डेज आ सकते हैं, और 120 आते ही अब रेजिडेंट हो जाएंगे। अब इनको क्या कहा है, अगर 120 से 181 डेज भी आएंगे तो हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हरीश साल्वे का नाम सबने सुना हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और लॉयर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां प्रैक्टिस करता है। लेकिन हरीश साल्वे आजकल मोस्टली आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो नॉन रेजिडेंट बनना चाहता है। हमने उसे बोला अगर आप नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो आप इंडिया, क्योंकि आपकी 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन इनकम है ही ज्यादा, करोड़ों रुपया है, तो आप नॉन रेजिडेंट तभी बनेंगे जब इंडिया में 1119 डेज रहेंगे, 1119 डेज, फिर हम फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप 120 डेज से 181 डेज रहना चाहते हैं तो लुक हियर, हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह देंगे। और क्योंकि आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए तो आपको इंडियन इनकम पे देना ही है, लेकिन जो प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, लेकिन क्योंकि वो सेटअप इन इंडिया है, उस पर भी देना पड़ेगा, उस पर भी टैक्स यहां देना पड़ेगा। वो अलग बात है, फॉरेन कंट्री आपको वो दे देगी क्रेडिट, लेकिन यहां तो टैक्स हम ले लेंगे उस प्रोफेशन में जिसकी इनकम आपने आउटसाइड इंडिया कमाई, बट विच इज सेटअप इन इंडिया। ये करा है। 191 डेज हरीश साल्वे आता है नॉन रेजिडेंट, 122 से 181 आता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, 182 डेज आ जाता है तो वैसे ही रेजिडेंट है वो। तो ये करा गया जो है, क्योंकि बहुत लोग नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं, वो इंडिया से पैसा बाहर ले गए हैं। अब इंडिया को कहते हैं बेकार कंट्री है, करप्ट कंट्री है, और पता नहीं क्या क्या इंडिया के बारे में कहते हैं। भैया आप ही तो पैसा लेके चले गए बाहर, कुछ गलत तरीके से और कुछ अच्छे तरीके से, क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट $1 मिलियन तो हर साल ले जा सकता है। आप पैसा देखा, हमारा कंट्री का पैसा आप बाहर ले जा रहे, और अब आप इंडिया को आप क्रिटिसाइज करते, क्या है बेकार कंट्री है। भाई साहब फॉरेन में तुम्हें क्या बोला जाता है, सेकंड रेट सिटीजन है आप तो भागे हैं, क्योंकि आपको पता है नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे तो फॉरेन एसेट की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लैक मनी एक्ट लग जाता। सब बनना चाहते, इसलिए हमने उनकी लिमिट कर दी, क्योंकि आपकी इंडिया 15 से ज्यादा है तो आप मान लो कि आपको हमने क्या कह दिया, रेजिडेंट कह दिया। अगर आप 182 दिन से ऊपर है, लेकिन 120 और 181 में हमने नॉट ऑर्डिनरी कह दिया। इसका एक कारण और भी है, जरा टेक्निकल है, जरा ध्यान से सुनना। देखिए हमारी कई कंट्री के साथ, मोर देन 96 कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। लेकिन जब हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है तो अब एक कंट्री के रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन कई बार हम होता है उस कंट्री के भी रेजिडेंट है और इंडिया के भी रेजिडेंट बन गए। जैसे अभी बताया, इंडिया के नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए और बाहर के रेजिडेंट, या इंडिया के भी रेजिडेंट बन गए, वहां भी रेजिडेंट बन गए। तो लॉ कहता है कि भैया कंट्री तो एक के रेजिडेंट बनना है, सर हम तो दोनों के हैं, तो कहता है टाई ब्रेकर लगाओ। टाई ब्रेकर वो क्या होता है टाई ब्रेकर? अरे T20 मैच खेलते हैं, अभी न्यूजीलैंड से हम 2 मैच जीते, टाई हो गया था मैच, इक्वल स्कोर हो गया था, तो आपने क्या खेला, एक सुपर ओवर खेलो, जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा। दोनों विनर नहीं होंगे, विनर तो एक ही होगा। और बाई चांस सुपर ओवर में फिर बन गया सेम रन, तो फिर टाई हो जाएगी, फिर टाई ब्रेकर लगाकर एक ओवर और खेलो। है ना ये T20। अब क्या किया है, अगर आप 2 कंट्री के रेजिडेंट हैं, ट्रीटी में दोनों कंट्री के रेजिडेंट हैं, वहां रेजिडेंट, यहां भी रेजिडेंट, या वहां रेजिडेंट या डीम्ड रेजिडेंट भी हैं, तो आपको टाई ब्रेकर रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे और दूसरी के नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। तो टाई ब्रेकर रूल कहता है
अगर दोनों कंट्री के रेजिडेंट हैं तो यू विल फाइंड आउट कि आपका परमानेंट होम कहां पर है. इफ योर परमानेंट होम इज इन इंडिया, then you will become resident of India and non-resident of that country. But if your permanent home is in that country, then you will become non-resident of India. चाहे आप resident थे, non-resident माने जाए. रुकिए. अब आपका permanent home दोनों जगह है, वहां भी है, इंडिया में भी है. फिर टाई हो गई. लाइए दूसरा टाई ब्रेकर रूल बनाए. दूसरा टाई ब्रेकर रूल कहता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर. जहां पर ज्यादा आपका पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे, दूसरी कंट्री के नहीं माने जाएंगे. हमारे जो सिटीजन है सारा पैसा तो इंडिया में ही रखते हैं. कोई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में रख रहा है, कोई ने हाउसेस खरीद लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है, और वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में है. अगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ज्यादा है तो वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे, फॉरेन के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, वहां के नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे. अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो जाते हैं तो आपको नॉर्मल रेट पे टैक्स देना है. यहां पर याद करिए, नॉर्मल रेट पे टैक्स देना है. इवन फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा, वो अलग बात है, कंसेशनल रेट पे देना. अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं क्योंकि आप वहां के रेजिडेंट बन गए, क्योंकि वहां का इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो गए. तो पता है क्या है कि नॉन रेजिडेंट को कुछ ऐसी इनकम है जिस पर ट्रीटी की वजह से स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगता है. देखिए अभी डिविडेंड 1 अप्रैल से रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है. रिसिपिएंट का, अगर मैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूं तो मुझे नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स देना है, और हो सकता है 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन टैक्स देना पड़े. लेकिन अगर मैं नॉन रेजिडेंट होता हूं, क्योंकि बाहर का रेजिडेंट हो जाता हूं, तो ट्रीटी में लिखा है कि मैक्सिमम टैक्स ऑन दैट डिविडेंड व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया shall be 10%. तो उनको एक कंसेशन मिल जाता है. ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए, रॉयल्टी के लिए, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी रेट कम है अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो और फॉरेन के रेजिडेंट हो. ये उल्टा भी है, अगर इंडिया के रेजिडेंट हो और फॉरेन में नॉन रेजिडेंट हो तो फॉरेन में टैक्स कम लगता है, इंडिया में ज्यादा लगता है, और फॉरेन का टैक्स का क्रेडिट देना. तो कई लोग क्या करना चाहते थे कि वो फॉरेन का टैक्स, वो डिविडेंड पे टैक्स बचाना चाहते कि डिविडेंड पे टैक्स नॉर्मल रेट ना लगे, क्योंकि वो 30% प्लस सरचार्ज वगैरह मिलाकर 42% भी हो सकता है. तो पकड़ लिया उनको कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट डीम्ड बन गए या ट्रीटी में आप रेजिडेंट हमारे बन गए, तो आपको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा एट स्लैब रेट. अगर आप नॉन रेजिडेंट होंगे हमारी कंट्री के और वहां के रेजिडेंट बन गए ट्रीटी की वजह से, या 119 दिन से ज्यादा आए नहीं, तो उस केस में डिविडेंड टैक्स इंडिया में मैक्सिमम 10% लगता है एज पर ट्रीटी. कई जगह 5 भी है, और बाकी टैक्स आपको फॉरेन कंट्री में देना पड़ेगा. इसलिए ये सब चेंज किया गया. अब मैं सम अप कर रहा हूं. देखिए, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी, इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, और आप बाहर टैक्स दे रहे हैं, उस केस में आप इंडिया आए 1119 डेज तो नॉन रेजिडेंट, इंडिया आए 120 डेज से 181 डेज तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडिया आए 182 डेज तो आप रेजिडेंट तो बन गए. सुन लिया. अब दूसरा केस, आप उस कंट्री में हैं जहां टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है. अगर आप इंडिया आए, इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे, और डीम्ड रेजिडेंट बनते ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे. और जब नॉट ऑर्डिनरी होगा तो आपको टैक्स देना है इंडियन इनकम प्लस 2 फॉरेन सोर्सेज इनकम, 1 इनकम फॉर बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और इनकम ऑफ प्रोफेशन विच इज आउटसाइड इंडिया बट सेटअप. ये चेंज लाए जो मैंने आपको बताया. अब अगला पॉइंट, सेक्शन 6 कर दिया मैंने, जरा ध्यान से सुनना. मैंने जब लेक्चर दिए बहुत बजट के टाइम पे, तो मैंने कहा था चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है. कुछ तो हमने खुद रिकमेंड की थी जब हम इनकम टैक्स लॉ बना रहे थे. हमने कहा था सर देखिए,
चैरिटेबल ट्रस्ट या तो 12AA में है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशन 1023C में भी है। होता क्या है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल तो है, 1023C में अप्रूवल मिलती है और 11-12 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। सर इनके पास अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन नंबर भी है, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है अप्रूवल का, रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि कई साल पहले ले लिया था, 20 साल 30 साल 40 साल 10 साल, वो सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा। और ये कहता है सर्टिफिकेट लाओ, मैं तो नहीं देता आपको नंबर से। तो सर एक बार ऐसा करो, सबको कहो दोबारा अप्लाई कर, घबराना नहीं, सिंप्लीफाइड फॉर्म, सब एक बार ही अपना नंबर देके अप्लाई कर दे और हम उनको एक न्यू यूनिक आईडी दे दो, ताकि अब आपके पास अब रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन हमने कहा रुकिए, एक बार अप्लाई करवाइए सिंप्लीफाइड फॉर्म। इतनी बात तो हमारी मान गए, लेकिन हम उसके आगे निकल गए। अब तो उन्होंने कहा सुनिए, सबको बोल रहा हूं, अगर आप 1023C में अप्रूवल आपके पास ऑलरेडी है या 12AA में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, सबको दोबारा अप्लाई करना है। एवरीवन हैज टू अप्लाई अगेन फॉर इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म, और आपको यूनिक आईडी मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ गए, वो कहता है जो ये यूनिक आईडी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मिलेगी, इसकी वैलिडिटी 5 साल होगी। पहले परमानेंट थी, अब 5 साल कर, और साथ में कह दिया यू विल हैव टू गेट इट रिन्यूड एंड रिन्यूअल मस्ट बी डन एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द पीरियड एक्सपायरी पीरियड ऑफ 5 years। 4.5 साल से पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब तो पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये सबको बोल दिया। अब सुनिए, मैं सबको बोल रहा हूं, जितने भी सुन रहे हैं, कि मैं आपको बता दूं 510 मेरी लिस्ट में आए हुए हैं, मैं 510 लोगों को बता रहा हूं, सुन लेना कि प्लीज हर चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12AA या 1023C में अप्रूवल है, will have to apply once again in a simplified form by, please note the word, by 31st August 2020। 31 अगस्त 2020 तक सबको ही अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन गई पुरानी, फिर तो नया करना पड़ेगा। ये लॉ आ चुका है, लेकिन रुकिए, एक और कंडीशन लगा दी 1023C में, और कईयों के पास दोनों थे, अरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे, 1023C की अप्रूवल भी है, उनके पास 12AA की रजिस्ट्रेशन भी है। वो क्या करते थे, कभी 1023C में चले जाते थे, हर साल बदल लेते थे, कभी 12AA में चले जाते थे, क्योंकि 12AA में कुछ ज्यादा फायदा है, 1023C में कम है, लेकिन 1023C में चेकिंग कम है, 12AA में चेकिंग ज्यादा है AO द्वारा, तो वो हमेशा परेशान होते। बात क्या आती मैं बताता हूँ। 1023C में कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं, जो कॉर्पोरेट डोनेशन आता है उनको 85% खर्च करना ही पड़ेगा और 15 ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड है तो कॉर्पस डोनेशन 11(1)D में माफ है, वो खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती। कॉर्पस डोनेशन इधर माफ नहीं था। अब अगला रूल क्या बना दिया है कि आगे से आप दोनों नहीं लोगे, या तो 1023C में अप्रूवल लीजिए या 12AA में जाइए, दोनों नहीं मिलेंगे आपको। जो आप अप्लाई कर रहे हैं दोनों नहीं मिलेंगे। अब प्रॉब्लम आ गई, 1023 में कॉर्पस माफ नहीं है, तो लीजिए, इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डालकर प्रोवाइजो 3 के नीचे कह दिया कि 1023C में भी अब कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। पहले करना पड़ता था 85 एग्जेम्पशन लेने के लिए, माफ कर दिया। लेकिन आपको बोल दिया देखो भैया, अगर आपके पास दोनों हैं तो एक के लिए चले जाइए, या 1023C अप्रूवल या 11-12 की एग्जेम्पशन अंडर 12AA। हम दोनों नहीं देंगे, दोनों नहीं देंगे। और ये भी कह दिया आगे से, देखिए जिसको रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है उसको सबको दोबारा करना है, चाहे वो 2 महीने पहले मिली, सबको अप्लाई करना है 31 अगस्त तक। अब एक और पॉइंट, अगर आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो अब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी, प्रोविजनल, विच विल बी वैलिड फॉर 3 years।
वो प्रोविजनल आपको कन्वर्ट करानी पड़ेगी परमानेंट में। परमानेंट तो नहीं है, 5 साल के अंदर करवानी पड़ेगी। 3 साल का पीरियड है। विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ 3 years, 2.5 साल से पहले इसको परमानेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए। परमानेंट तो नहीं है, वो 5 साल के लिए मिलेगी, लेकिन आपको प्रोविजनल को कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। 6 महीने चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू करने के बाद या 2.5 साल से पहले, 3 साल में खत्म होना, 2.5 साल से पहले इसको दोबारा ले लीजिए। नए आदमी कह रहा हूं, नए। अब जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, उनको भी अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही मिलेगी, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। ये चैरिटेबल ट्रस्ट में 1023C में चेंज आया जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चेंज 1034। अब इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन बता दूं, हुआ क्या, मैं कई बोर्ड की मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, तो मैं एक कंपनी में था, तो वो कंपनी कहने लगे सर 1 अप्रैल से डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा है इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट तो हम भी हैं और हमें तो टैक्स लग जाएगा 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, हो सकता है वो 42% भी हो जाए, 39% भी हो जाए। सर बहुत ज्यादा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो 21% पड़ता था। तो हम ये करते हैं कि इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 31 मार्च तक। मैंने कहा हाँ कर दीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हमने डिविडेंड कर दिया, पे कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है डिविडेंड 1034 में लिखा है और 115 में लिखा था डिविडेंड रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 April 2020 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। अरे भैया, उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 29 मार्च 30 मार्च को, उसने डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिए, लेकिन आपको मिले नहीं। आरटीजीएस कर दिए तो मिल गया, नहीं मिले तो 1 अप्रैल को मिलेंगे। तो 2 टैक्स थोड़ी लग जाएंगे कि भैया शेयर होल्डर भी दे और कंपनी ने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो मैंने अमेंडमेंट करवाई थी 1034 में भी 115O में भी, कि उसमें लिखवा दिया था इफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी बिफोर 31 मार्च, अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है, देन इन दैट केस even if the dividend is received on or after 1 April 20, it will be exempt. It will be exempt. मतलब जो डिविडेंड 1 अप्रैल के बाद डिक्लेयर होगा या पे होगा, उसमें तो रेसिपिएंट को देना है, लेकिन जो डिविडेंड डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका है 31 मार्च तक, जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया, लेकिन वो रिसीव्ड हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 115O भी चेंज करा दिया, 1034 भी करा दिया कि वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कराया। अगला पॉइंट देखिए, ATM सेक्शन आया था कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है शेयर्स में और उसको डिविडेंड आता है, वो तो कंपनी को फिर टैक्स लग जाएगा। लेकिन हमने ATM में डलवा दिया था, किसी जमाने में पहले भी होता था, कि वो अमाउंट if they distribute in the same year to the shareholder whatever they receive from domestic company, if the same amount is distributed, so you will get a deduction under ATM। मतलब उस कंपनी को फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो टैक्स नहीं लगेगा, शेयर होल्डर को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। ATM डाला, लेकिन लिखा था where a domestic company receives from another domestic company any dividend, then that dividend to the extent it is distributed by the company in the same financial year shall be allowed this deduction। लिखा था dividend received from a domestic company। अब बदला क्या है, dividend received by a domestic company from, अब देखना क्या, नंबर 1 a domestic company, नंबर 2 a business trust, नंबर 3 a foreign company। फॉरेन से आया, बिजनेस ट्रस्ट से आया, या किसी और डोमेस्टिक कंपनी से आया, इफ दैट अमाउंट received is distributed in the same year, you will get deduction। तो अब सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी नहीं रहा, अब 3 डिविडेंड हो गए जो आएंगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ATM में डिडक्शन मिल जाएगी। ये चेंज आया जो मैंने बताया। नेक्स्ट चेंज 115BAA और BAB, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें बैक डेट से आपको एडवांटेज दे गया था और कहा था कि प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21 में कंपनी चाहे तो 115BAA में टैक्स दे सकती है, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22% प्लस सरचार्ज 10% फॉर एजुकेशन टैक्स 4%।
कंपनी दे सकती है इंस्टेड ऑफ 30 और 25 ये दे सकती है, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ऐसा एक और भी लाए थे 115 BAB saying that कि if there is a company which is incorporated on or after 1/10/2019 and it starts manufacturing of production or manufacturing any production or produce any article or a thing or generate electricity, अगर न्यू कंपनी है तो रेट ऑफ TDS रेट ऑफ टैक्स shall be 15% प्लस सरचार्ज 10% प्लस एजुकेशन सेस 4%। आप 22 और 15 दे सकते हैं। ये 20-21 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 19-20 में ही आ गया। लेकिन वहां पर एक कंडीशन थी कि आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन ही देंगे। एक डिडक्शन लिखा था कि हम चैप्टर 6A की डिडक्शन 80IA ऑनवर्ड्स नहीं देंगे, जो पार्ट सी में है 80IA ऑनवर्ड्स वो नहीं देंगे, लेकिन 80G और 80GG भी दे देंगे, ये लिखा हुआ था। लेकिन जब बिल आया 1 फरवरी को, उन्होंने बैक डेट से चेंज कर दिया। उन्होंने कह दिया लुक हियर, हम आपको 80G भी नहीं देंगे, 80GG भी नहीं देंगे, हम पूरे चैप्टर 6A का नहीं देंगे, वो ये भी नहीं देंगे। ये लॉ आ गया था। अब पीछे डिजास्टर हो गया। अब इन्होंने सोचा अगर 22% देंगे तो 80G नहीं मिलेगा, 19-20 में भी नहीं मिलेगा, 15% देंगे तो 80G नहीं मिलेगा, तो कोई देगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, जो ये प्रोविजन डाला था कि आपको 80G 80GG भी नहीं मिलेगा, वो अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कि 1 अप्रैल 20 के बाद अगर 80G होगा तो नहीं मिलेगा, 1 अप्रैल 20 से पहले कर देंगे डोनेशन तो मिल जाएगा। अरे सर, वो तो पहले करने का दिन ही कितने थे? 23 मार्च को तो बिल पास हुआ, 7 दिन थे, लेकिन डिजास्टर आया हुआ है। तो आपको पता है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाकर ये 31 मार्च वाला 30 जून कर दिया कि अगर आप 30 जून तक भी दे दें तो आप 19-20 में डिडक्शन ले लें। अगर आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी या पिछले साल लेंगे, रुकिए अगले साल तो उसको मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो 80G अलाउड ही नहीं है। तो उसको कह दिया तू दे दे, पिछले साल का डिडक्शन ले ले, 19-20 में ले ले, अगर 80G की डिडक्शन दे देगा। इवन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का भी आ गया, वो बाद में बताऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो कंपनी 22 देना चाहती है या 15 देना चाहती है, उसको भी एक एडवांटेज दे दिया गया। पहले हटा दिया गया था 1 फरवरी को, अब ला दिया गया कि 19-20 में अगर आप डोनेशन दे देंगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21। और साथ में ही रिलैक्स कर दिया गया कि जो मार्च में था वो आप 30 जून तक देख सकते हैं, तो आपको पिछले साल डिडक्शन मिल जाए। ये चेंज किया 115 BAA में और BAB में कि आपको 80G और 80GG असेसमेंट ईयर 2021 प्रीवियस ईयर 19-20 में तो मिलेगा, असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 20-21 में नहीं मिलेगा। ये डाल दिया है। अब आया जो नया सेक्शन डाला था 115 BAC, आपको याद है इंडिविजुअल एचओ को कहा आप चाहो तो न्यू रिजीम में आ जाओ, और न्यू रिजीम में क्या होगा, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। क्या लिखा था, ऑन फर्स्ट 2,50,000, आप 60 से ज्यादा है या 60 से कम है कोई फर्क नहीं, कोई सीनियर सिटीजन को एडवांटेज नहीं। फर्स्ट 2,50,000 निल, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 2,50,000 ऑफ इनकम 10%, next 2,50,000 15%, next 2,50,000 20%, next 2,50,000 25%, and above 50 lakh 30%। ये नया डाला था। लेकिन ये भी बोला था आपको कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्रीवियस ईयर 20-21 में आपको ऑप्शन है, और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना, आपकी मर्जी है करो या ना। लेकिन लिखा था अगर आपकी टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस इंक्लूडेड नहीं है तो ये ऑप्शन आप हर साल चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी चले जाओ 9 में, फिर आपने देखा गलत हो गया, अगले साल वापस आ जाओ, फिर चेंज करना है तो हर साल चेंज करते रहो, ऑप्शन आपकी मर्जी है। लेकिन साथ में ये भी लिखा था इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस देन दिस ऑप्शन विल बी अलाउड टू बी एक्सरसाइज ओनली वंस, एक बार कर सकते हैं, उसके बाद वो सब्सिक्वेंट ईयर में रहेगा। वो तो आपकी मर्जी है, इस साल करो, 2 साल बाद करो, 4 साल बाद करो। लेकिन आप एक बार नए में चले गए तो वापस आना मुश्किल होगा। फिर एक प्रोविजो डाल दिया था
चलो एक बार वापस आ सकते हैं, बार बार नहीं। वर्ड था इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो आपको एक ही बार अलाउड है। तो मैंने हर स्पीच में कहा इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा है, प्रोफेशनल नहीं लिखा है, तो प्रोफेशनल तो हर साल चेंज कर सकता है। मैंने सबको बोला था। और जब मैं वापस आया तो डिपार्टमेंट में कई काम कराने गया, फायदा भी कराना है तो नुकसान भी हो गया। तो मैंने उनको कहा आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा है, हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो हर साल चेंज कर सकेंगे। कहता हमारा मतलब तो ये है नहीं, बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन। मैं कहा दोबारा मत कहना, आपके चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपने बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन नहीं लिखा है, तो हम तो चेंज कर सकते हैं। लीजिए मेरी आवाज को पकड़कर उन्होंने लिख दिया, इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अब डाल दिया और प्रोफेशन, then this option can be exercised only once. Whenever you decide, you can exercise once. हाँ वो अलग है प्रोवाइजो, एक गलती कर दी तो एक बार वापस आ सकते, बार बार नहीं आ सकते। ये लॉ बना दिया है अब 115 BAC में कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों इंक्लूड कर दिया। अब वो ऑप्शन प्रोफेशन वालों को नहीं रही, एक ही ऑप्शन। अगला सेक्शन सर 194J, आपको याद है इस बिल में आया है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विस पे टीडीएस का रेट 2% कर दिया इंस्टेड ऑफ 10% टू अवॉइड लिटिगेशन। क्योंकि हमेशा लिटिगेशन था 194C में 2 है या 10 है, तो आपको तो 10 काटना चाहिए था फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इन्होंने कर दिया नहीं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज पे 2% कटेगा, 10 नहीं कटेगा। 194C में भी 2 है तो कह दिया, ये फायदा कर दिया। लेकिन एक चीज भूल गए, इन्होंने क्या किया कि एक रॉयल्टी की डेफिनेशन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज VI के नीचे कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। वहां पर क्या किया हुआ था इन्होंने पहले कि कंसिडरेशन फ्रॉम द सेल और एग्जीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, उसको रॉयल्टी नहीं मानते। अगर एक सिनेमेटोग्राफी फिल्म है, उसकी कोई सेल कर दिया आपने प्रोड्यूसर ने, या प्रोड्यूसर ने उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और प्रोड्यूसर ने उसको एग्जीबिशन के लिए दिया या डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्जीबिशन के लिए दिया, तो उस केस में रॉयल्टी नहीं मांगते थे। रॉयल्टी में 10% है, रॉयल्टी नहीं मांगते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, रॉयल्टी में इंक्लूड कर दिया क्या, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स और कंसिडरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म और कंसिडरेशन फॉर एग्जीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी। तो इन्होंने 194J में डाला, सुनिए क्या डाला, इफ देयर इज ए रॉयल्टी विच इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, मैं इकट्ठा नहीं बोलता, अलग अलग बोलते हैं, सेल ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म और exhibition of a cinematography film, in that case it will be treated as royalty and the rate of TDS in this case for this shall be 2% instead of 10%. वैसे तो रॉयल्टी पे 10% है, लेकिन इस आइटम पर भी 2% कर दिया। सो 2 आइटम पे 2% हो गया। एक तो वही था फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, दूसरा रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ से कंसिडरेशन for the sale of goods or distribution, sale or distribution or exhibition of cinematography film, ये कर दिया। नेक्स्ट थिंग, पिछले साल 194N आया था कि ए बैंक और ए कोऑपरेटिव बैंक और ए पोस्ट ऑफिस विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट TDS at the rate of 2% if some person withdraws whether from one account or more than one account an amount exceeding ₹1 crore in cash, 1 crore in cash, तो 2% TDS काटना था बैंक ने, 2%। रुकिए, ये 194N जो पिछले साल ही आया था, अब इसको चेंज कर दिया गया। लेकिन रुकिए 30 जून तक तो सेम है, पुराना 194N 30 जून तक चलेगा और 1 जुलाई से ओल्ड 194N has been substituted by न्यू 194N। अब नया 194N 1 जुलाई से आएगा। उसमें लिखा है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकालोगे, वहां कोई चेंज नहीं किया,
तो 2% है। लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो डाल दिया है कि अगर पिछले 3 असेसमेंट ईयर में आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है किसी साल, 3 साल और तीनों साल नहीं भरी, अगर एक भी साल भर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों साल रिटर्न नहीं भरी पिछले असेसमेंट ईयर्स में, तो इस केस में टीडीएस 2% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख होगा, 1 करोड़ नहीं, 20 लाख के ऊपर 2% अगर ई कैश निकालेंगे। 1 करोड़ के बदले 20 कर दिया अगर आपने पिछले 3 साल कोई रिटर्न नहीं भरी। क्या कर दिया? 20 लाख, और 20 से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ के ऊपर 5% कर दिया अगर पिछले 3 साल आपने रिटर्न नहीं भरी। अगर रिटर्न भरी है तो 2% है एक्सीडिंग 1 करोड़, रिटर्न नहीं भरी है तो 2% है अबाउट 20 लाख बट अप टू 1 करोड़ एंड 5% है अबाउट 1 करोड़। ये 194N 1 जुलाई से आया। नेक्स्ट चेंज, एक 194O आया था जो 1 अप्रैल से लगना था। ई कॉमर्स ऑपरेटर will collect deduct tax when the making payment to e-commerce participant। याद आया? 1%। ये 1 अप्रैल से लगना था, इसको पोस्टपोन कर दिया है 1 अक्टूबर से। अब सितंबर तक कोई टीडीएस नहीं, अक्टूबर से टीडीएस होगा while making payment to e-commerce participant। ये 194O चेंज करा। आगे था 206C1G एंड 206C1H। याद कीजिए 206C1G क्या था कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अगर 7 लाख से ऊपर इफ यू सेंड द मनी आउटसाइड इंडिया, ऑथराइज्ड डीलर विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 5%। एंड फॉरेन टूर पैकेज, द टूर ऑपरेटर विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 5%। और 194H में डाला था 206C1H में कि सेलर, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है and if you receive more than rupees 50 lakh as consideration for supply of goods, तो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1%। पहला चेंज, ये दोनों सेक्शन पहले 1 अप्रैल से लगने थे, अब ये 1 अक्टूबर में शिफ्ट कर दिए गए। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 206C1G या 206C1H नहीं लगेगा। और दूसरा चीज, देखिए मैंने कहा था लिबरलाइज स्कीम में आप पैसा भेजें, आपका 5% तो बहुत ज्यादा रेट है, मैं पैसे भेज रहा हूं 5% टीसीएस कट जाएगा और बाद में मुझे इसका क्रेडिट लेना पड़ेगा, ये तो बहुत अमाउंट है। मैं उनके पास गया कि सपोज करो कोई लोन देता है, लोन पे पैसा लेके भेज रहा है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मर गया बेचारा, लोन लेके तो बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करे बच्चों की पढ़ाई के लिए, अब 5% और कहां से लाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाता है। मेरी एक बात तो मान ली, लोन वाली मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं इंडिया में ज्यादा अच्छा है, अमेरिका में तो लोग मर रहे हैं, जी थोड़ी रहे, वो तो हम इंडिया में ज्यादा अच्छे, तो मेडिकल का तो नहीं माने। अब क्या किया है जरा सुन लीजिए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कोई भी पैसा लिबरलाइज स्कीम में बाहर जाएगा, कोई टीसीएस नहीं है ही नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर से शुरू होगा। 1 अक्टूबर से अगर आप बाहर पैसा भेज रहे हैं 7 लाख से ज्यादा, प्लीज नोट 7 लाख इन ए प्रीवियस ईयर, उस 7 लाख को लेते हुए 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर को भी जोड़ना है। हालांकि उस पर टीसीएस नहीं काटना है, लेकिन जोड़ना है। अगर वो दोनों मिलाकर और अक्टूबर से मार्च तक मिलाकर अगर 7 से ऊपर होता है तो बैलेंस पे अबाउट एक्सीडिंग 7 लाख पे 5% टीसीएस। मैंने बोला 7 लाख की लिमिट लेते हुए सितंबर तक का भी जोड़ना है, हालांकि उस पर टीसीएस नहीं काटना, लेकिन जोड़ना है, लेकिन 5%। लेकिन एक कंसेशन देगी, अगर लोन लिया है एजुकेशन का फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कवर्ड है 80E में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में 5% नहीं होगा, 0.5% होगा, आधा परसेंट। इफ इट एक्सीड्स 7 लाख, आधा परसेंट। ये रिलैक्सेशन आपको दे दिया है। अब 194H में था कि जब आप सेल ऑफ गुड्स करें और उसका कंसिडरेशन रिसीव करें ड्यूरिंग द ईयर एक्सीडिंग 50 लाख, तो 0.1% टीसीएस काटना था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो अब अक्टूबर तक कर दिया गया। और एक और प्रॉब्लम थी, सेल, आप गुड्स बेच रहे हैं, एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अरे बायर तो बाहर बैठा है, उससे टीसीएस कैसे कलेक्ट करेंगे? तो इन्होंने लिख दिया सेल ऑफ गुड्स
अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या जिस पे ऑलरेडी टीसीएस कट चुका है, वो छोड़कर अगर उस सेल की वजह से आपको कंसिडरेशन मिल रहा है मोर देन 50 लाख, जब 50 को देखेंगे तो 1 अप्रैल से सितंबर वाला भी जोड़ ले, पर कटेगा उसके बाद ही, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से पहले नहीं कटेगा, अक्टूबर के बाद। तो आपको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। सर ये सारी चेंजेस आई गवर्नमेंट अमेंडमेंट में। आइए अब रिलैक्सेशन प्रोविजन पे चलते हैं। गवर्नमेंट आजकल रिलैक्स कर रही है, आपको पता है ये डिजास्टर आ गया और लॉकडाउन हो गया, बड़ा मुश्किल काम था, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्स किया है। किसमें रिलैक्स किया है? अरे मैं सिर्फ जीएसटी तो मैं नहीं कर रहा, 8 एक्ट में रिलैक्सेशन दी है। उस 8 एक्ट के नाम रख दिया स्पेसिफाइड एक्ट। कौन कौन से एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 3, चौथा ब्लैक मनी एक्ट, 5वां कमोडिटी ट्रांजैक्शन लॉ, 7वां एसटीटी लॉ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन लॉ 6वां हो गया, 7वां इक्वलाइजेशन लेवी, और 8वां विवाद से विश्वास की, विवाद से विश्वास एक्ट। इन 8 एक्ट में इसका नाम रखा स्पेसिफाइड एक्ट। क्या कराया जा सकता? इफ देयर इज ए ड्यू डेट which is prescribed or specified or notified in the specified act, ये 8 एक्ट में कोई ड्यू डेट नोटिफाइड है या स्पेसिफाइड है या प्रिस्क्राइब्ड है, आगे वर्ड सुनना, which falls between 20th मार्च to 29th जून। अगर वो ड्यू डेट 20 मार्च से 29 जून के बीच में फॉल कर रही है इन 8 एक्ट में, तो वो ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30th जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यही दिस ईयर, मतलब 30th जून 2020। मैं एग्जांपल देता हूं, फिर पूरा लाऊंगा। आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है ड्यू डेट, लेकिन कई लेट लतीफ होते हैं, उनको पुरानी आदतें हैं लास्ट में भरने की, तो वो बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। और बिलेटेड रिटर्न का भी ड्यू डेट 31 मार्च हो गया है, 1 साल नहीं है, अब 31 मार्च, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 का बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट 31 मार्च थी, 31 मार्च, बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपने वो ड्यू डेट आप भर नहीं सके 31 मार्च का, या आपने एक रिटर्न भर दी थी लेकिन उसमें कोई ओमिशन थी, देयर वाज सम wrongful statement in that return, you wanted to revise that return under 139(5), and revised return is also allowed up to 31st March 2020 for previous year 18-19। वो नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, ये belated return and revised return can now be furnished up to 30th June। एक और चेंज किया था कि आपको आधार has to be linked with the PAN, and if you don't link Aadhaar with the PAN by 31st March, आपका PAN डिसकंटिन्यू कर देंगे। ड्यू डेट क्या थी? 31st मार्च, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 30th जून तक लिंक कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। थर्ड पॉइंट, विवाद से विश्वास, कि पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या थी? 31 मार्च। अगर नॉर्मल टैक्स देना है जिसमें एक्स्ट्रा 10 नहीं है, और एक्स्ट्रा 10 के बाद 31 मार्च के बाद एक्स्ट्रा 10 था, लीजिए इसकी भी ड्यू डेट 31 मार्च थी, वो बढ़ाकर 30 जून कर दी विदाउट एक्स्ट्रा 10%, एक्स्ट्रा 10 पर के विदाउट 30 जून। बट अगर आप 30 जून के बाद देना चाहते हैं तो भी अलाउ कर दिया है, 1 जुलाई से लेकर, अभी डेट नहीं बताई लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी 30 सितंबर आएगी, अभी आई नहीं, तो उसको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 के बदले 110, या 50 देना था 55, या 125 देना था 135, या 25 देना था 30, ये सब कर दिया है, कर दिया है। अब आइए, अब जरा ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट, बेनामी प्रॉपर्टी और वो सारे एक्ट, अगर कोई ड्यू डेट फॉल करती है बिटवीन 20th मार्च टू 29 जून, फॉर एग्जांपल मैं आप कह रहा हूं 8 एक्ट की इनकम टैक्स अथॉरिटी है, या बेनामी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी है, या ब्लैक मनी के अंदर प्रॉपर्टी है, या इक्वलाइजेशन की अथॉरिटी है, या एसटीटी की कंपनी, जो भी अथॉरिटी है, अगर वो स्पेसिफाइड थी ड्यू डेट उनके एक्ट में 20 मार्च से 29 फॉर
completion of any proceedings, for passing of any order, for issue of any notice, for issue of any notification, for giving any sanction, for giving any approval or similar nature, the due date which were falling between 20th March and 29th June has been extended to 30th June. So अब याद कीजिए वो जो सर्च वो जो रीअसेसमेंट का केस है जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 20 थी, पुराने 4 साल और 6 साल का जब खुलता है 31 मार्च 20, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। 30 जून तक कर दिया। वेल्थ टैक्स में भी है, अगर वो 17 सेक्शन में रीअसेसमेंट करना था तो वो भी 30 जून तक कर दिया। या कोई सैंक्शन देनी थी डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास करना था, कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी थी जो 20 मार्च और 29 जून के बीच में थी, सबको 30 जून कर दिया। ये तो डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ए रिटर्न, फॉर फाइलिंग एन अपील, फॉर सबमिटिंग एनी रिपोर्ट, फॉर submitting any application, for filing any document, for filing any application, अगर वो 20 मार्च से 29 जून के बीच में थी टैक्स पेयर की, वो भी 30 जून कर दी गई। 30 जून कर दी गई। ये भी ड्यू डेट आ गई है। अगला पॉइंट, अब ध्यान से सुनना। एटीसी जो पार्ट बी की रिडक्शन है, आपने सुना एटीसी, एटीडी और एटीजी, नहीं, सारी जो पार्ट बी में पेमेंट बेसिस में मिलती थी चैप्टर 6A में, अगर 31 मार्च को ड्यू थी और आप पेमेंट नहीं कर सके तो 30 जून में कर आप पिछले साल ले लेना। पिछले साल ले अंडरटेकिंग दे देना, वो पिछले साल अलाउ हो जाएगा। जैसे आपने पीपीएफ जमा कराना था 19-20 में, 31 मार्च तक कराना था, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन आपने कराया नहीं, अगले साल करा के पिछले साल ले लो। आपने कोई एफडीआर बनवानी थी, आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेने थे क्योंकि एटीसी की रिडक्शन लेनी थी, 31 मार्च तक अलाउड था लेकिन आपने नहीं ले सके, कोई बात नहीं, 30 जून तक लेकर एटीसी की ले लो। 80CCC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, वो भी 80CCC में 1.5 लाख की लिमिट में ही है, तो वो अगर पेमेंट नहीं करी या 31 मार्च तक ड्यू थी तो कर देना 30 जून। 80CCD वो भी तो 31 मार्च तक अगर पे कर दो तो आपको 80CCD 1.5 लाख तो वो मिलता ही है, वो उसमें ही इंक्लूडेड है, लेकिन एक 50,000 रुपये एडिशनल मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ट्रस्ट, न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट, ये 50,000 जो एडिशनल है 31 मार्च तक ड्यू था, नहीं कर सके तो 30 जून तक कर देना, आपको मिल जाएगा। 80D मेडिकल इंश्योरेंस कर देना 30 जून तक। 80G डोनेशन, वो अगर आपने पिछले साल लेनी है नहीं कर सके, ये तो जान के लाए हैं ना कि आप अगले साल कर दो 30 जून तक, हम पिछले साल दे देंगे। उनके लिए तो जान के लाए जो 22% वाले हैं या जो 15% वाले हैं, उनको अगले साल तो मिलनी नहीं है, वो इस साल अगर दे दें तो मिलती, साल तो निकल गया, तो उन्होंने कहा 30 जून तक देकर आप पिछले साल ले लेना। इवन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी दे दो, वो भी आ गया है, वो भी 100% मिलेगा विदाउट लिमिट ऑफ 10%। दे दीजिए, हम आपको वो भी अलाउ कर देंगे, जून तक दे दो, पिछले साल दे देंगे। अगले साल दोगे तो 22 वालों को तो मिलना ही नहीं है एटीजी, 15 वालों को भी नहीं मिलना, और जो न्यू स्कीम में जाएगा इंडिविजुअल उसको भी नहीं मिलना। पिछले साल ले लो, अब देखे ये कर दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, गलती मत करना, मैं बता रहा हूं। जो कोई टैक्स ड्यू है अंडर इनकम टैक्स, अंडर वेल्थ टैक्स, अंडर बेनामी प्रॉपर्टी, अंडर व्हाट यू कॉल ब्लैक मनी एक्ट, सीटीटी लॉ, अंडर एसटीटी, कोई भी टैक्स ड्यू है या इक्वलाइजेशन लेवी ड्यू है जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च से 29 जून थी, हमने ड्यू डेट नहीं बढ़ाई, ड्यू डेट नहीं बढ़ाई। हमने कहा जो आपका पेमेंट ड्यू थी उस पेमेंट को ड्यू को लेट कर दो 30 जून तक। तो जो इंटरेस्ट देते थे 1% और 1.5%, उसका कंसेशनल रेट दे दिया 0.75%। मेरी बात सुन लो, मार्च की रिटर्न जो क्वार्टर ला टीडीएस है 30 अप्रैल तक जमा कराना होता है। 30 अप्रैल तक करा दो तो ठीक है, 30 अप्रैल तक नहीं कराएंगे तो डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, आपको इंटरेस्ट कम लगेगा
0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगर आप 30 जून तक करा दें। अगर 30 जून के बाद में कराएंगे फिर तो पूरा 1 और 1.5 पड़ेगा। आप अप्रैल वाला जो नहीं करा सके, हम आपको डेट नहीं एक्सटेंड कर रहे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। From 1% or 1.5%, it will be 0.75% if you deposit that money which was due on 30th April by 30th June. If you deposit after 30th June, तो आपको तो फिर 1 और 1.5% ही लगेगा। सिमिलरली अप्रैल का टीडीएस है, आपको पता है मई 7 को जमा कराना है, मई 7 तक नहीं करा सके तो रुकिए, आपको कोई डेट एक्सटेंड नहीं करी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.75 हो जाएगा अगर आप 30 जून तक जमा करा दें। इस तरह मई का 7 जून है, आप 30 जून तक करा दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.75% होगा। कोई कंसेशन नहीं है, डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यू डेट के बाद जमा कराने के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। या और भी कोई सेक्शन है जहां 1% पड़ता है या 1.5% पड़ता है, अगर वो ड्यू डेट के बाद जमा कराएंगे तो रेट हम कम कर देंगे, पर हमने ड्यू डेट नहीं बढ़ाई। और साथ में ये भी कह दिया है ये कंसेशनल रेट तभी होगा जब 30 जून तक पैसे जमा करें। ये किया है सर। अगला पॉइंट, लोगों ने 197 में फॉर्म 13 भर के लोअर रेट का सर्टिफिकेट लेते हैं। 195 जो नॉन रेजिडेंट के केस में भी लोअर रेट लेते हैं। 206C वो भी लोअर रेट ऑफ टैक्स का लेते हैं या नील रेट का फॉर्म 13 भरते हैं। नॉर्मली 1 अप्रैल से लेना होता है, जो 1 अप्रैल निकल गई तो उसके लिए हमें अप्लाई पहले कर देते हैं मार्च से। अगर तो आपने अप्लाई कर दिया और अभी तक आपको मिला नहीं है तो जो पिछला सर्टिफिकेट आपके पास है वो अगले 30 जून तक और टिल द डिस्पोजल ऑफ योर एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर वही लागू रहेगा। आप वही यूज कर सकते हैं, चाहे वहां लिमिट खत्म हो गई हो फिर भी कर सकते हैं। अब कईयों ने कहा सर हमने तो अप्लाई ही नहीं किया, फॉर्म 13 में करना था, अब करा ही नहीं है, 30 मार्च तक करना चाहिए था। कोई बात नहीं, पिछला वाला चलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप कब अप्लाई करेंगे, अब या तो 30 जून या जब भी सिचुएशन इंप्रूव होगी तब अप्लाई कर देना। ये दूसरा आ गया। तीसरा, कोई लोग ये भी तो कह सकते हैं सर पिछले साल हमने लिया ही नहीं था, इस साल लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, एक स्कीम आ जाएगी जिसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा, चिंता मत करो। और एक और आया जो नॉन रेजिडेंट को बाहर भेजे पैसा दे रहे हैं और उसका भी टीडीएस कटना है, अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो कहते अभी तो 10% काट लो, बाद में सर्टिफिकेट आएगा देख लो, ये कर। और 15G 15H का तो आपको पता है, वो तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया, उसमें तो क्लियर कर दिया 15G 15H आप 30 जून तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये चेंजेस आई हैं जो मैंने ऑर्डिनेंस में बताई। अब आपके पास जितने क्वेश्चन है पूछिए, जितने भी आप पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू आस्क, मैं आपको बताऊंगा, पूछिए। मनप्रीत जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जरा क्वेश्चंस एक एक करके ले लीजिए। हाँ, या तो डायरेक्ट उसको बोलिए मेरे से बात करे या फिर चैट दे दीजिए मुझे। हाँ चैट है सर, चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए आप। अब एक मिनट में करता हूं, मेरे को जरा वो बहुत छोटा लिखा होता है, मैं कभी चश्मा नहीं लगाता, लेकिन उसके लिए लगाना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं चश्मा पकड़ लूं। हाँ जी, हाँ जी सर जी। सर कंपाइल कर ली है, 1 मिनट पढ़ देता हूं आपके लिए। चैट बॉक्स में भी है मनप्रीत जी कुछ क्वेरीज? हाँ चैट बॉक्स से निकाल के चलिए चैट ओपन कर दीजिए, मैं करता हूँ होस्ट में। लीजिए मैं चैट कर लिया, ठीक है, मेरे पास आ गया। सर प्लीज मेंशन योर क्वेरी। सर इफ टीडीएस, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सीधा बोल रहा हूं। सर इफ टीडीएस रिटर्न फाइल्ड आफ्टर 31st May, वेदर फाइन अंडर 234 फॉर 200 पर डे लेविड, नो, क्योंकि ये 20th मार्च से लेकर 29 जून में ड्यू हो रही है। फीस नहीं लगेगी 200 रुपए की, लेकिन अगर लेट इंटरेस्ट लेट टीडीएस जमा कराएंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा 0.75%, लेकिन कोई फीस नहीं पड़ेगी। ये खत्म कर दिया। नेक्स्ट वन, सर वेदर सीएसआर एक्सपेंस कैन बी क्लेम फॉर फाइनेंशियल 2021। अरे आप अगले साल लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दे सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये हिलाइए मत, पहले ऊपर के खत्म होने दीजिए ना। हाँ जी, बट सर इन केस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न
which will be filed by 30th June, will there be any interest? भैया नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न में किस चीज का इंटरेस्ट? अगर आपने टैक्स देना है तो वो तो लगेगा ही लगेगा। Yes. वो तो 0.75% लगेगा 31 मार्च के बाद। अरे टैक्स देना है तो लगेगा, टैक्स नहीं है तो लेट फाइलिंग का नहीं है, टैक्स में तो लगेगा 0.75%। अगला पॉइंट, प्लीज डिफाइन टेक्निकल सर्विसेज। अरे बेटा सारी, जैसे एक कंप्यूटर है, आप उसकी मेंटेनेंस के लिए दे देते हो, वो कहता है जी ये तो टेक्निकल सर्विसेज है ना। अगर तो प्रोफेशनल है, आप आर्किटेक्ट हो, सॉरी आप इंजीनियर हो और इंजीनियर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो प्रोफेशनल है। लेकिन मैंने कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर दी, मेरी कंपनी है, मेरी फर्म है, तो वो केस में 2% है, 2%, क्योंकि वो आप नहीं कर रहा है। प्लीज डिफाइन टेक्निकल हो गया। सर इन केस ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, टीसीएस रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ओवर 50 लाख और फॉर 1 रुपी ओनली। सर देखिए, अगर सेलर ऑफ गुड्स है तो टोटल सेल कब करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल लास्ट ईयर करी, इस साल करी या अगले साल करेंगे, एडवांस आ गया, अगर 50 लाख से ऊपर आ गया तो अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख पे काटना है, 50 से नीचे में नहीं काटना, अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख पे काटना है। सर बैंक में कैश टीडीएस के लिए 3 साल के रिटर्न देने होंगे। अरे सर वो जो बैंक में अगर 3 साल के लिए नहीं है, एक भी साल की रिटर्न का वो बैंक मांग लेगा, नहीं तो 20 लाख पे काटना शुरू कर देगा। वो कहेगा प्रूफ करो कि आपने पिछले 3 साल रिटर्न भरी थी, एक भी रिटर्न दे दो, वो 1 करोड़ के ऊपर काटेगा। तीनों साल ना काट दियो तब है वो, एक भी दियो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, टैक्स ऑडिट डेट फॉर फाइनेंशियल 19 एक्सटेंडेड और नॉट। क्या मतलब 30 जून है वो, तो आपकी डेट क्यों एक्सटेंड होगी भैया फाइनेंशियल 19 की? वो तो आपको पता ही है क्या डेट है, 1 मंथ बिफोर दी ड्यू डेट, वो तो 30 सितंबर हो गई। टैक्स ऑडिट क्यों चेंज करेंगे? 30 सितंबर तो अभी बहुत दूर है। चलिए, लेट डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टीडीएस इज अ डिफॉल्ट। नहीं, ये डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर 30 जून तक कर देंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट 0.75% देना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी की कोई पोजीशन प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अगर इंडिया 181 डेज रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट है, 182 डे में रेजिडेंट है। अगर बाहर टैक्स नहीं दे रहा तो क्या फर्क पड़ेगा? वो कोई वहां बाहर इंडिया में प्रोफेशन थोड़ी कर रहा है, वो कोई बाहर प्रोफेशन थोड़ी कर रहा है, बाहर बिजनेस थोड़ी कर रहा है। इंडियन इनकम पे तो पहले भी टैक्स देता था, अब भी देगा। अगर बाहर प्रोफेशन कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो तभी तो प्रॉब्लम आती। ना वो प्रोफेशन करता है ना वो बिजनेस करता है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे, इन केस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर पास बाय सीपीसी बैंगलोर which are being received nowadays in email, in case of some dispute, can we raise the issue till 30th June? सर आपके पास ड्यू डेट 30 दिन होती है, अगर 30 दिन नहीं है तो आपने कोई एप्लीकेशन देनी है 30 जून तक दे सकते हैं। What about 1023C 3AB and AC forward by central and state government? अगर आप फंडेड बाई गवर्नमेंट हैं सब्सटेंशियली और वो, तो उसके लिए तो कोई होता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। और 1 करोड़ के लिए वाले के लिए भी कोई अप्रूवल नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर वाले की है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग सर, इन केस ऑफ धर्मशाला मंदिर इज ओनली रजिस्टर्ड एज सोसाइटी एंड नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, हैव टू फाइल रजिस्ट्रेशन अंडर 12A। भैया आप तो मर चुके हैं, आपका तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है 1/4/2017 के बाद। 50,000 से ऊपर टोटल रिसीट है तो अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 वो तो लग चुका है। अब तो नया अप्लाई करेंगे तो कर दीजिए, वो 31 अगस्त नहीं है, वो 1 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर है, कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए वो नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पुराना केस खुल सकता है। हाउ एम्प्लॉयर विल डिडक्ट कलेक्ट टीडीएस बिफोर 30th April व्हेन एम्प्लॉय इज गिवन टिल 30th June? एक चीज पूछिए, सैलरी में हर महीने टीडीएस काटना पड़ता है पूरे अमाउंट पर, आप फिर भी एक अंडरटेकिंग ले लेते हो कि वो 31 मार्च तक जमा करा देगा और आप दे देते हो, नहीं तो 31 मार्च को आप काट लेते। इस केस में अंडरटेकिंग 30 अप्रैल तक तो 30 अप्रैल तक को जमा करा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको रिलीफ दे देना। लेकिन 30 अप्रैल के बाद अगर आपने अंडरटेकिंग ली और बाद में उसने जमा नहीं कराया तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं ये नहीं जानता उसको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 30 अप्रैल तक करा दे तो बेनिफिट दे दो, 30 अप्रैल तक नहीं कराए तो को भैया अपने रिटर्न में ले लेना, मैं नहीं दूं।
अपनी रिटर्न में ले लेगा बेनिफिट, उसको क्या दिक्कत है, रिटर्न में मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेल गुड्स 51 लाख, रिसीव पेमेंट 45 लाख। मैंने सेल तो कहा ही नहीं है किस साल करी, इस साल कितने पैसे रिसीव हुए, 50 से कम हुए तो नहीं, 50 से ऊपर हुए, 51 हुए तो 1 लाख पे काटना है। सेल का कोई मतलब नहीं है, सेल लास्ट ईयर हो, रिसीव दिस ईयर हो, सेल इस ईयर हो और रिसीव दिस ईयर हो। इस साल एडवांस आ गया, सेल नेक्स्ट ईयर हो, 50 से ऊपर हो तो काटना, सीधी सीधी बात। डिडक्शन अंडर 80 GGA, 80 GGB ऑल्सो अलाउड, यस, अगर 30 जून तक दे देंगे तो अलाउड हो जाएगी। ऑन बोर्ड द शिप ऑफ ए फॉरेन फ्लैगशिप, बता तो दिया शिप वाला, डिडक्शन 80 GGB 80C, यस अलाउड, 19-20 अगर 80 GGB और 80 GGC भी अलाउड हो जाएगा। Have inquiry that Form 13 of income tax lower deduction, no deduction, will file with AO of income tax or AO of TDS। अरे सर वहां पर दिखाया हुआ है, फाइलिंग में जाओ और फाइलिंग में लिखा है फॉर्म 13 किसके जाना है, उसके ऊपर डालो। आप फॉर्म में तो देखो वहां पर लिखा हुआ है, प्लीज एक्सप्लेन 271 AAD एंड इट्स एप्लीकेशन। 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्स एंट्री है और वो एंट्री यहाँ है, एंट्री जो आपने जानकर ओमिट कर दी है फॉर कंप्यूटिंग योर टोटल इनकम, तो 100% ऑफ दैट फॉल्स एंट्री, अमाउंट ऑफ दैट फॉल्स एंट्री या जो ओमिट की है वो पेनल्टी पड़ेगी आपको जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। और दूसरा जिसने वो एंट्री करवाई है उसको भी 100% पेनल्टी पड़ेगी 271 AAD में ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और एंट्री विच हैज बीन ओमिटेड बाय यू। चलिए, और वो 1 अप्रैल 2020 से होगी। सर काइंडली एक्सप्लेन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। कितना आसान था यार, एक 54 है, आपने एक मकान बेचा, दूसरा मकान लेना था विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years या कंस्ट्रक्शन करना विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। अगर ये पीरियड 2 year 3 year इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th March to 29 June, पीरियड ऑफ 2 years और 3 year इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th March to 29 June, तो ये 30 जून हो गया। जैसे 54 EC था, पिछले आपने कोई लैंड और बिल्डिंग बेची, 50,000 पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, और वो 6 month का पीरियड एक्सपायर हो रहा है बिटवीन 20th March to 29 June, 30th June कर दिया, 30th June कर दिया। What need to be taken first, GST और TCS? TCS GST पे कटेगा तो नहीं कटेगा अभी क्लियर नहीं किया, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, 0.1% तो है यार, कितना है, क्यों परेशान हो रहे हो, वैसे आ जाएगी, लेकिन वो भी अक्टूबर से कटना है, अभी थोड़ी कटना है। If TDS is deposited late and interest paid at lower rate, will it also be compounded under? Yes, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन प्लीज याद रखिए, प्लीज याद रखिए 30 जून तक करा देना। If we opt for 22% rate of tax for company, then credit or MAT allowed or not? बिल्कुल अलाउड नहीं है MAT। 22% और 15% को MAT अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड। Sir, my client is providing software related services, whether it will cover under 2%, डिपेंड करता है अगर वो क्या चीज है। अगर तो वो ये तो रॉयल्टी मानी जाती है, ये तो 10% में आती है। We have received the lower deduction at 3% for financial year 2021। आपको इतनी जल्दी मिल गया। We applied at 1%, so can we take benefit of lower deduction? जी नहीं, जी नहीं, अब आपको मिल चुका है, आपको 3% लेना पड़ेगा। ना 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 ना, वो नहीं एक्सटेंड होगा, नहीं मिला तो एक्सटेंड होगा। Sir, whether contribution to PM Care Fund in April to June be claimed as CSR of 2021? जी हाँ कर सकते। And can be claimed under 80G? जी हाँ ले सकते, ले सकते। Can I deposit 1.5 lakh plus 1.5 lakh in financial 2019? Yes, ये क्लैरिफिकेशन आ गई है कि पीपीएम में 1 साल में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप पिछले साल का जमा कराना चाहते हैं करंट ईयर में और एक अंडरटेकिंग दे देंगे ये पिछले साल लूंगा, तो अगले साल आप इस साल 1.5 वो करा दीजिए और 1.5 नया भी करा दीजिए। बैंक पोस्ट ऑफिस को बता दिया गया है, बैंकों को बता दिया गया। In case of a new taxation scheme, can still continue with the earlier scheme, and if yes, up to then। ये तो earlier तो आपके लिए परमानेंट है, नई में जाने के लिए ऑप्शन लेना है, पुरानी में तो आप कंटिन्यू करें, कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपकी मर्जी है।
What about society and trust claiming exemption 23C as educational society, gross receipt below 1 crore? इनको कोई नहीं करना। 1 crore वालों को कोई रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। In 50 lakh is threshold as understood from, हाँ जी, TCS के लिए 50 threshold है, 50 के ऊपर कटेगा। ITR filed after 30 March 20 for financial 89 be revised। देखिए आफ्टर 31 मार्च को करोगे फिर किस बात का रिवाइज यार, 31 मार्च तक कर देते तो रिवाइज होता है। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। इतनी भी गलती करते हो यार कि गलती हमेशा ही करनी है, अभी तो टाइम है, ठीक तरह भर देना। नहीं नहीं हम तो गलती करेंगे सर, ऐसे नहीं करो सर। चलिए TCS ऑन सेल एज एक्सपोर्ट, जी नहीं होगा, एक्सपोर्ट पे नहीं होगा सर। 1 person is working as a cruise and receiving salary in INR, no tax is deducted, he is NRI, what is the tax implication? Assessment year 21-22, अगर NRI है तो कुछ नहीं होगा। In case of a wholesale stockist of essential food, non-perishable item, in the present scenario, substantial cash sales are being made and cash memo below 50,000 are issued. Goods are delivered ex godown to the customer. Can such cash sale or covered under इतना the income? देखिए भाई साहब, ओ भाई साहब, ये आप उसका उल्टा मतलब मत ले लें। कैश मीमो 50 से कम है, प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा कि ये राइट सोर्स है और आपकी GST है, तो वो अगर नाम और एड्रेस और पैन नंबर तो उसका देना ही पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं है, आपको चिंता नहीं है। लेकिन जो 50 लाख वाला आया वो तो शुरू ही अक्टूबर से होना है, इसलिए उसकी तो चिंता करो ही नहीं। When we are unable to book expenses in absence of to bill from creditor due to lockdown, how can we calculate TDS liability and deposit by? Wonderful, wonderful कि आपको बिल नहीं मिल रहा सर, ऑनलाइन सब काम हो रहा है। ये मत कहना 31 मार्च के बिल नहीं आपको मिलेंगे, ये नहीं है। उसको भी अपनी अकाउंट्स पूरे कंपनी करने हैं, वो 31 मार्च के डेट तो आपको इशू कर देगा, ऑनलाइन कर देगा। बिल तो बने हुए हैं, ऐसा थोड़ी है बैक डेट में बिल बनाएगा यार, कोई सप्लाई ही नहीं करी उसने 31 मार्च तक, ऐसे मत कहिए सर। बिल बने हुए हैं, उससे ले लीजिए। ITR and Form 10B filed late for 19-20, then would it be a mandatory for department to allow exemption expenses under 11? नहीं जी, 31 मार्च डेट नहीं है कि आपको अप्लाई करना है 85%, ड्यू डेट कहाँ लिखी है? आप अगले साल भी कर सकते हो 9A फॉर्म देके, आप 11-2 में एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। 85% के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय, बता दिया। MLI to enter into effect from 1st February, what does this mean? सर ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट की जो आप बातें कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती, वो आराम से समझेंगे, वो तो कुछ और चीजें हैं जो इस वक्त नहीं समझ आएगी। What about disallowance of PF, ESI लेट पेमेंट? सर लेट पेमेंट के लिए ESI की तो डेट ही एक्सटेंड कर दी गई, मार्च की डेट आपको पता है 75 दिन कर दी, मई हो गई 75 दिन, 15 मई कर दी गई है। PF की कितनी क्यों नहीं आई है? कल आ गई, कल आ गई, कल आ गई, कितनी कर दी? कल आ गई है, कल आ गई है सर। 1 महीना बढ़ा कितनी डेट कर दी? 1 महीना बढ़ा दीजिए। 1 महीना तो खत्म हो गया सर, 15 अप्रैल खत्म हो जाएगा। 15 अप्रैल की 15 मई हो गई, 15 मई कर दिया, 15 मई कर दिया, 15 मई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, चिंता ना करो, क्योंकि फिर भी नहीं खुलना है लगता है। ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन अ मंथ ऑफ जनवरी, कोई भी हो दोबारा अप्लाई करेगा अगस्त को, जनवरी में भी रजिस्टर हुआ कोई बात नहीं। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर का बार बार पूछ रहा है यार। 115 BAC बिजनेस एसेसरी टू वन टाइम ऑप्शन दिया है, बट इफ इट डज नॉट कंप्लाई द कंडीशन विल बी डिसअलाउड टू यूज 115 BAC and have to pay tax under normal scheme. Yes, अगर ऑप्ट इन कर लिया तो भैया उसको टैक्स भी वो पुराने स्कीम के हिसाब से देना है, तो ऑप्ट कर क्यों रहा है, वो पुरानी स्कीम में आ जाए। फॉर विदहोल्डिंग टैक्स ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर following the latest the date on which MLI enters into force for each of the party of CTA, India has chosen to substitute calendar year. किसने कहा? अभी कोई MLI में ऐसा नहीं आया है, आएगा, अभी ऐसा नहीं आया कि कैलेंडर ईयर कर दिया है। For salaried person adopts new scheme of tax rate of TDS purpose
but at the time of filing return whether old scheme can be adopted. क्या मतलब? अरे अब तो लॉ आ गया है कि वो लिख के देगा तो नई स्कीम में टैक्स काट लेगा. ये तो आ गया है, क्लैरिफिकेशन आ गई है कि अगर वो एक अंडरटेकिंग दे दे तो आप नई स्कीम में टैक्स काट सकते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर नहीं देगा तो ओल्ड स्कीम. एम्प्लॉयर शुड टेक डिक्लेरेशन फॉर एम्प्लॉयड कर तो दिया. 10AA में ए बी 30 जून अप्लाई कर सकते हैं. हाँ जी कर सकते हैं 10AA में. फिर वही विल एम्प्लॉयर हैव टू टेक डिक्लेरेशन फ्रॉम एम्प्लॉय. यस डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी न्यू रिजीम में. अप्रूवल अंडर 12A इन फरवरी 20. अरे करना पड़ेगा भाई साहब, एक बार भी हो करना पड़ेगा 30-31 अगस्त तक. अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, चाहे 1 महीना पहले मिला. Will the license purchase for running an IT equipment will be covered under royalty or fee for technical services? सर इससे फर्क क्या पड़ता है? ये फर्क तो तब पड़ता है जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है, अदरवाइज तो फर्क नहीं पड़ता है. आप पढ़िए, रॉयल्टी की डेफिनेशन दे रखी है, अगर उसमें फॉल करता है, नेचर मुझे नहीं पता जो आप पूछ रहे हैं, तो रॉयल्टी में आ जाएगा, नहीं तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस में आएगा. सर टेक्निकल सर्विस की 2% ही होगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विस देगी, क्योंकि वो प्रोफेशन नहीं करती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इन केस ऑफ ए फॉरेन रेमिटेंस ऑलरेडी TDS विदहोल्ड देन आल्सो TCS रिक्वायर्ड. जी नहीं, मैंने कहा TCS नहीं है, माफ हो गया है. We have certificate for 197/1920 and TDS deducted on the rate for payment in month of April and file application under 194/2021 and it got rejected due to any reason. अरे अभी रिजेक्ट कहाँ हुई है? रिजेक्ट हुआ तो फिर तो मिलेगा ही नहीं. रिजेक्ट नहीं हुआ तो मिलेगा. रिजेक्ट हो गया तो फिर तो नए साल में आपको मिला नहीं, फिर क्यों दे रहे? If a person other than CA, WA, non-professional doing accounting work, whether he can get 44AD or 44ADA, अकाउंटिंग वर्क वो प्रोफेशनल नहीं है तो 44AD में आता है, 44ADA में नहीं आता. ये MLI का बार बार पूछ रहे हैं यार. अरे भैया MLI अभी साइन हो रहा है सर, अभी नहीं हुआ है. अभी तो वो उन्होंने एग्री कर लिया कि हम करेंगे, कब जब चेंज आएगा तब देखेंगे ना. MLI एंटर करने का मतलब ये थोड़ी है कि चेंज हो गया था. MLI का मतलब होता है अब जब भी आप करेंगे तो चेंज हर पूरी सारी ट्रीटीज में चेंज हो जाएगा. हर एक की ट्रीटी, आपको नई ट्रीटी नहीं लेनी पड़ेगी, मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी. सर कैन यू प्लीज समराइज द रेजिडेंशियल स्टेटस. जी अब टाइम नहीं है अब मेरे बस, और इसलिए मैं समराइज नहीं कर सकता. आप टेलीफोन पे पूछ लीजिए, हम खत्म करने वाले हैं. वी वांट टू अप्लाई फॉर लोअर व्हेन द स्कीम विल कम इन एंड फ्रॉम व्हेन द पुराने को लीजिए, नहीं तो स्कीम आ जाएगी और पुरानी डेट से मिल जाएगा. चलिए सर, और बस ठीक है. अब एक आध रह गया, मैं ले लेता हूँ. हाउ टू फाइल रिटर्न मैंने बता दिया. फॉर धर्मशाला फॉर 1920 इफ हैव ओनली सोसाइटी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट. सर मैंने आपको बोला ना, आपको तो रजिस्ट्रेशन लिया नहीं हुआ, आपकी तो इनकम ही टैक्सेबल हो जाएगी 56(2)(10) में. What would be the rate of tax for income from other sources? BAA में अगर है तो 22% ही लगेगा. BAB में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो भी 22% है. चलिए सर, एक एम्प्लॉय ग्रेच्युटी ट्रस्ट है, क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है सर? उसको भी एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए. रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च थी डेट. अगर नया, अगर ये है, अगर पुराना है तो फिर तो चलता रहेगा. नया है तो 31 मार्च है तो ग्रेच्युटी ट्रस्ट पुराना है सर. पुराना है तो पुराना अप्लाई नहीं करना होता दोबारा. ना दोबारा अप्लाई नहीं करना उसके लिए तो फिर यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं है. इसके लिए नहीं. ठीक है. कैपिटल गेन का जी वो कह रहे हैं कि अभी still the situation is not good. अरे क्या हो गया, 30 जून तक नहीं होगी गुड तो बढ़ा देंगे. वो उन्होंने पावर ले रखी है बढ़ाने के लिए. सर बाकी क्वेश्चन बाद में ले लें, क्योंकि मेरे पास कोई लोग आए हुए हैं, मैं बैठा हुआ था. जो 2-4 क्वेश्चन है वो मेरे पास पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल में डाल दें, मैं आपको बता दूंगा. नहीं तो ये तो क्वेश्चन में लाइन लगी हुई है. हाँ सर लाइन है काफी. एंड डेफिनेटली वी रियली वेरी थैंकफुल टू यू. हाँ जी. एंड वो क्वेश्चन मेरे से पूछ लेंगे, मेरे ईमेल में डाल दें और अपना नंबर दे दें बस. तो गिरीश जी के ईमेल में डाल दीजिए या हमारे सीए विचार मंच के ईमेल में डाल दीजिए. फॉरवर्ड टू गिरीश जी, एंड गिरीश जी से जब भी आंसर सुटेबल टाइम में आएंगे विल फॉरवर्ड टू द मेंबर्स.
कर We दो. are really very thankful to Girish ji for sparing such a valuable time in very short notice. Thank you very much. Thank you Thank very you, much sir. Thank all you, the sir. participants. Welcome, all the best. Take care. Take Thank you care. very much, Thank you sir. very much, sir. God Thank bless you, sir. Thank Stay you. safe, sir. Thank you, sir. Thank you Thank all. you. All the best. हाँ जी खेमका जी। जी आकाश जी, तो अगर आप कुछ क्वेरीज को आंसर करना चाहें, some participants are क्लोज still there. क्लोज If करें you सर। or Manpreet ji, if you would like to answer some queries, then we can go. Saurabh ji, if you would like to answer some queries, then we can go on. Otherwise, we can call it a day. Let's call it a day. I have another meeting lined up. Okay. So now webinar meetings and the Zoom meetings are so concerns are been raised that the Zoom meetings are not saved, but I assure all the participants we are managing our Zoom meetings through a professional firm. So they Platform. have assured us that they are taking all the precautions which the ministry has advised. So I hope that we are secure and we are running on a secure platform. इसकी अगर कोई रिकॉर्डिंग देखनी हो तो इसकी रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पे आपको अभी भी लाइव चल रही है और इसकी YouTube चैनल पे जो भी रिकॉर्डिंग होगी दैट वुड बी शेयर्ड ऑन YouTube चैनल. Our next program would be on GST annual return and audit for financial year 18-19. All the critical issues we will try to address, and we will address from basics to the advanced issues. Same time, Saturday 3 to 5, communication and link for registration will be shared with all through our email and WhatsApp messages. I request all and everyone to join through registration process. This registration process is only for the safety of all the participants. So I thank you very much, Saurabh Srivastav ji, from joining from Bangalore. I thanks Akash Jain ji also joining from Daryaganj, Delhi, and everybody. Please do give your poll for the as a feedback. थैंक यू खेमका जी। Please, before disconnecting, please give your poll and feedback on today's seminar. And we are collected more than 91 questions, and those questions has been answered by Ahuja ji will not be replied, and whatever have left, we will replied accordingly, and that will be available also on our CAVM website. You can also collect the same, and this recording of this YouTube will be also available on our CAVM website. And, Thank you very on much. the Facebook page also. On the Facebook page. Thank you. So thanks all the participants. Thanks very much. थैंक यू See सर। you थैंक all यू ऑल द बेस्ट। on Saturday 3 o'clock, same time, same platform. Thank you. Thank And you, we sir. thank Bye. our meeting manager Vineet ji also. Thank you very much, Vineet ji. Thank you so much, sir. You're welcome. Thank you, sir.